everyone, welcome back to Byju's 9th and 10th channel. I'm your physics mentor सौरभ और आज हम हैं यहाँ पर रे डायग्राम्स के लिए. शायद ही ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम हुआ हो जहाँ पर रे डायग्राम बनाने के लिए ना आए हो, राइट? Seldom it happens that we see a question where we don't have ray diagrams in any of the board exams, right? So it's extremely important that we are very clear with how to draw ray diagrams. Now, I'll tell you what the problem happens. बहुत बार ऐसा होता है, सर हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, है ना, लेकिन लाइंस कभी कभी मीट नहीं करती हैं. उसको यहां मीट करना था, लेट्स से, लेकिन कहीं और मीट कर जाती है, गलतियां हो जाती हैं, राइट? सो इन रे डायग्राम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स केम अप विद दीज काइंड ऑफ क्वेरीज कि सर रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, क्या कोई शॉर्ट तरीका है, कैन वी प्ले स्मार्ट अबाउट इट? सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दिस. I'll give you two methods. पहले तो I'll show you questions जहां पे रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, है ना, किस तरह के questions आ सकते हैं. Secondly, I'll teach you how to be smart about it, right? There are two ways. One is the smart way. You can play smart in few questions. Second is the accurate way in which whatever you'll do, you'll get the correct answer. ठीक है? So let's discuss this बहुत जल्दी में. वैसे मैंने पहले सेशन किया हुआ है इस तरह का, लेकिन अभी क्या टाइम कम है ना? And what you need is everything quick. So that's why I'm here. All right. So if you are new, subscribe to the channel and like this video right now. All right, चलो आगे चलते हैं. देखो, condition. The first condition which I want all of you to agree upon is all of you know the cases, right? At least for concave mirrors, convex mirrors, convex lens, concave lens. I'm hoping that cases are very clear with you because I'm telling you, see, these cases is what gives you logic. Every time you solve a numerical, whatever you do, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यार इमेज अगर यहाँ बन रही है मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा. If object was kept over here, then image should be over here somewhere, है ना? ये केसेस होने बहुत जरूरी है. So that is the first requirement. ये केसेस तो आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है? You can never forget them and you should have them in your mind. Extremely important. That's the first requirement. अगर ये नहीं आता तो nobody can help you, ठीक है? Please make sure you know these things. Beyond C क्या होता है? When object is kept beyond C, what happens? Image is real inverted diminished between C and F. बहुत अच्छे. At C पे क्या होता है सर? Real inverted same size बनती है. Between C and F क्या होता है? At F क्या होता है? Between F and C, F and P क्या होता है? That's a special case by the way, है ना? ये एक special case है. And convex lenses and concave mirrors both are like same, है ना? दोनों में cases इतने ही बनते हैं. Similarly, concave lenses and convex mirrors दोनों they are also very similar, है ना? दोनों आगे बोलते हैं सर हम आपको परेशान नहीं करेंगे. I will not trouble you a lot. I'll only say we always form virtual erect and diminished images, right? That's very easy. That's why these cases are extremely important and I have given you enough ways जिसके I would say which will make sure that you remember them, है ना? I have given you tricks to remember them. I have given you methods to remember them. I have given you table to remember them, है ना? I even told you take a printout and stick it on the wall. रोज इसको 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के देख लेना, बस काफी है, ठीक है? That's something which we have already done. किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? Let's see. For example, I'll show you all the questions which came in board examinations. जैसे कि ये क्वेश्चन है, which is the following statement is not true in reference to diagram shown below. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अगेन ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. 2022 1 मार्क क्वेश्चन केम. पहली चीज तो नॉट ट्रू पूछा हुआ है. ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट विल बी इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड सेम साइज. रियल है, सही बात है. एनलार्ज्ड है ना. इक्वल डिस्टेंस डबल द फोकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? डबल द फोकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज आल्सो फाइन. इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, दैट्स आल्सो फाइन. What is not true? Image forms is enlarged. ये गलत है मतलब यही सही है. That is your correct option. Very good. For the diagram shown, according to new Cartesian sign convention is extremely important बच्चों. The magnification of image formed will have the following specifications. Object कहाँ पर है? Between F and P. कैसा बनेगा? Virtual erect and magnified, है ना? Dentist mirror वाला केस है ये तो, right? Sign magnification कैसा होगा? Positive होगा. क्यों? Because virtual image है. बहुत बढ़िया. Positive मतलब negative हटा दो. बहुत बढ़िया. Enlarged image है और magnified image है मतलब it will be more than one. Option B is the correct answer. बहुत जल्दी हो गया, फटाफट हो गया, है ना? लाओ आगे चलते हैं. So last 2 questions के लिए कहीं ना कहीं रे डायग्राम बनाना आना जरूरी नहीं है. Nobody is asking you to form ray diagrams. Last 2 questions you could have solved just by cases. जिन बच्चों को केस नहीं आते हैं, people who don't know these cases, in last 2 questions they would have drawn the diagram and there they would have spent a lot of time और शायद गलती हो जाती. Right? So that's why cases आने तो बहुत जरूरी हैं. That is the basic requirement. Last 2 questions I just showed you to prove my point. Cases आने जरूरी है.
नहीं आते बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। आगे चलो। If the image formed by spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? भाई हमेशा erect और diminished बन रहा है, कौन सा मिरर है ये? सर कुछ भी नहीं करना, कॉन्वेक्स मिरर है ना, डरने वाली बात ही नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। Draw a labeled ray diagram to support your answer। अब यहाँ पर आ गया ray diagram, 2018 2 marks question। बहुत easy diagram है इसका। I'll just very quickly show you मैं बनाता कैसे हूँ diagram and how you can carry forward this thing which I'm going to teach you now, है ना। चलो उसके लिए I'll come over here। कॉन्वेक्स मिरर का केस है, सी देयर आर टू केसेस इन दिस, है ना। सो एक बड़ा सिंपल केस बनाते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, कहीं भी हो सकता है, इंफिनिटी पे नहीं है बस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ड्रॉ अ लाइन। पहले तो एक लाइन बनानी है, बहुत बढ़िया। एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्पेस यू हैव, आपके पास कितना स्पेस है। दूसरी चीज, व्हाट आई यूज इज अ कंपास। मैं कंपास यूज करता हूं, क्यों भाई? कंपास यूज करने में ना मेरे को फायदा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने आप मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने कंपास से 6 सेंटीमीटर्स का रेडियस लिया, ठीक है। अब इसको ना मार्क करके देख लिया करो हमेशा, whenever you are doing this 6 और 0 यहां पर है, मार्क करके देखा, हाँ सही बात है 6 आ रहा है। चलो अब कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है? इट इज टू द राइट, है ना। सो मैं यहां पर ये पॉइंट रखूंगा, लेट्स से, एंड आई विल ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर, है ना। मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, बहुत बढ़िया। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और ये पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वेरी इजी। इसके अलावा स्केल लेंगे हम, विल जस्ट टेक द स्केल एंड हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक पॉइंट होगा जो कि होगा 3, इसको मार्क करेंगे, ये हो जाएगा फोकस, वेरी गुड। अब क्या करना है, सिंपली हमको रे डायग्राम्स के रूल फॉलो करने हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, लेट्स से मैंने 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लिया, कहीं भी, एनीवेयर यू कैन टेक इट, 1.5 सेंटीमीटर का आई हैव टेकन द ऑब्जेक्ट, डजंट मैटर आप कहां लेते हो, ठीक है। ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, सिंपल, पहली रे, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भाई इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट एंड इफ यू ट्रेस इट बैक इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, है ना। तो मैं फोकस से कहानी चालू करूंगा, आई विल मेक दीज डॉटेड लाइन्स ऑन दिस साइड और इस तरफ आई विल मेक अ नाइस रे, भाई ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, फाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होने वाली रे, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, सच बात है ना। सो यहां से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और ये रहा ऑब्जेक्ट का हेड, बिहाइंड द मिरर विल बी द डॉटेड लाइन, ऐसे ऐसे टक 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 टक, है ना। और उसके इस तरफ कुछ नहीं करना है और यहां पर थोड़ा सा रबर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है क्योंकि स्केल छोटा पड़ गया मेरा, राइट। यू कैन जस्ट ट्रेस दिस लाइन बैक। आप बोलोगे ये रही इंसिडेंट रे और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, बहुत अच्छे। ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों रेज मीट कर रही हैं, है ना, दिस पॉइंट इज माय इमेज, डन। इतनी सी चीज तो है, राइट। ध्यान से देखा हम किस तरह, ये वाले डायग्राम के लिए इट डजंट मैटर, आपको बस थोड़ा स्मार्टली काम करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आई यूजुअली यूज अ कंपास, दैट इज द फर्स्ट आइडिया व्हिच यू ऑल शुड हैव, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो वापस आते हैं। सो इन दिस वे कॉन्वेक्स मिरर्स के डायग्राम आप बना सकते हो बहुत इजीली, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, जरा ध्यान से देखो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर्स इन साइज is placed 25 centimeters in front of a concave mirror. Now, I have told you this before. मैंने पहले बताया तुमको, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चन को करते हो, रफ में कम से कम वैल्यूज लिखते चलो। क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज दिया हुआ है, सर अच्छा ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर, प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, क्यों भाई, मिरर है कॉनकेव, ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा हुआ है, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। द ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, so that's why it will be plus 4 centimeters. Very good. Is placed 25 centimeters in front of concave mirror, 25 centimeters to the left of the mirror, मतलब u equals minus of 25 centimeters. Very good. Focal length 15 centimeters. It's a concave mirror, मतलब focal length will be to the left. F will be how much? Minus of 15 centimeters. Very good. Solve करना है किस चीज के लिए? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? V तो पूछ रहा है. The question is asking you about
द इमेज डिस्टेंस, है ना। सिंपली क्या करना है तुमको, सॉल्व करना है इनको यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अब सॉल्व करोगे, सी आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन फॉर यू, अभी मैं समझाने आया हूं रे डायग्राम, टाइम इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट सॉल्व दिस फॉर यू, यू ऑल नो। यहां तक पहुंचा दिया, सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है। v विल बी हाउ मच, -37.5 सेंटीमीटर आएगा आपका इमेज डिस्टेंस। सेकंड, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज निकालना है अगर, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ना भाई, hi/ho क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, किसके इक्वल होता है ये, -v/u। फॉर मिरर्स दिस इज द फॉर्मूला, है ना, बहुत अच्छे, इसको यूज करोगे। सो h of i will come out to be -6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, the moment you get these answers, the first thing you need to do is cross check. क्या लॉजिक काम कर रहा है मेरे यहाँ पे? What do you mean? भाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी 30 सेंटीमीटर्स, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। केस है जहां पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, है ना, एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, v is -37.5 जो कि 30 से बड़ा है, इट मींस सच बात है, बियॉन्ड c बन रही है इमेज। लेट्स से हाइट ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर्स, सही बात है ना, ऑब्जेक्ट वाज 4 सेंटीमीटर्स, इमेज इज 6 सेंटीमीटर्स, माइनस में आ रही है, मतलब इन्वर्टेड भी है और मैग्निफाइड भी है, राइट। सो माय आंसर इज करेक्ट, वैल्यू सारी आ चुकी हैं। अब बात आती है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब ये वाला न्यूमेरिकल क्यों स्पेशल है, 2020 का है, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, बिकॉज दिस रे डायग्राम यू माइट नीड टू टेल, राइट, यू माइट नीड टू टेल कि भाई ये डायग्राम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का है। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे बनाते हैं, राइट। फॉर दिस आई हैव टू अगेन कम ओवर हियर, ऑलराइट। सो इसको हटा देते हैं, विल जस्ट कीप इट अवे। अब क्वेश्चन में वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हैं हमको, है ना, ध्यान से अगर देखा जाए। सो व्हाट डू वी हैव इन दिस क्वेश्चन, वी ऑलरेडी नो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर्स, राइट, u is -25 centimeters, f is equal to -15 centimeters and c is equal to -30 centimeters. लेकिन एक चीज बोलो, just think about it, you can't take c equals -30 centimeters, भाई 15 centimeters का ये पूरा स्केल है, right, you can't take 30 centimeters, मतलब 15 and 15, right, इतना स्पेस थोड़ी होता है। सो वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, वी हैव टू स्केल इट डाउन। अब स्केलिंग डाउन करें तो कितना करें, थिंक अबाउट इट भाई, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं 5 के मल्टीपल्स हैं। व्हाट इफ वी मेक अ स्केल ऑफ 1:5, राइट। सो फोकल लेंथ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, ये 6 सेंटीमीटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू कितना बन जाएगा, इट विल बी, कम ऑन, थिंक 5 सेंटीमीटर ना भाई, 1:5 का स्केल लिया हुआ है हमने, राइट, स्केल इज ऑफ 1:5, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन डायग्राम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, करेक्ट है ना। 1 सेंटीमीटर डायग्राम के अंदर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो ये स्केल हमने लिया है, ये स्केल बस मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सो 1:5 का हमने स्केल लिया है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। यू भी आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 और हाइट ऑफ इमेज है -6 सेंटीमीटर। इसकी स्केलिंग पे बाद में आएंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं, राइट। अगेन द ड्रिल इज वेरी सेम, विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लाइन, ऑलराइट, मैंने एक लाइन बना दिया। 6 सेंटीमीटर आई हैव टू टेक फ्रॉम द कंपास, क्यों, आई टोल्ड यू, कंपास से हमको दोनों पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं, दैट इज व्हाई आई प्रेफर कंपास। 6 सेंटीमीटर है। और हाँ, एक और चीज बच्चों, 6 सेंटीमीटर जब देखोगे ना, हमेशा सर ऊपर लाके देखना, राइट, हमेशा सर ऊपर लाके देखना, नहीं तो क्या होगा, पैरेलैक्स एरर आ जाएगा। 6 यहां पे है और 0 यहां पे है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे रखेंगे यहां, एंड दैट्स हाउ विल टेक 6 सेंटीमीटर, राइट। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, बहुत अच्छे, ठीक है। दिस इज माई कॉनकेव मिरर, यस। फटाफट ड्रॉ करना है, एंड कहां से लिया था हमने, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड, ये पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, c इक्वल -30 सेंटीमीटर्स, राइट। ये c है -30,
3 सेंटीमीटर्स पे आएगा फोकस, ठीक है, दिस विल बी माई फोकस, F इक्वल्स माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, राइट। अब बात करते हैं U की। U आने वाला है 5 सेंटीमीटर्स पे ना, राइट, सच बात है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, दिस विल बी U, है ना, ये होगा U। बहुत अच्छे। अब V कहां होगा, सोचो V कहां होगा भाई, V was coming out to minus of 37.5, 35 सेंटीमीटर्स होता है 7 सेंटीमीटर्स, 40 सेंटीमीटर्स हमारे स्केल के हिसाब से होगा 8 सेंटीमीटर्स, मतलब 37.5 विल बी 7.5 सेंटीमीटर्स, सही बात है, राइट। सो V का स्केल डाउन करेंगे अगर हम, V का स्केल डाउन आएगा 37.5 को हम लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर्स, राइट। सो 7.5 ले लेते हैं इसको फटाफट, देखो ध्यान से, ये रहा 2 8 भाई 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 7.5, राइट, ये हुआ 7.5, यहां पर आएगा V। बहुत अच्छे। अब हमको बनाने हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। अब ध्यान से देखो भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर्स, वन वे इज आई कैन टेक 1:2 का स्केलिंग डाउन, बट एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, इफ यू टेक 1:2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल कम आउट टू बी व्हाट 2 सेंटीमीटर्स, इमेज कितना आएगा 3 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स इतना होता है, इतना, और 3 सेंटीमीटर्स इतना होता है ना। एक चीज है, इफ यू रिमेंबर कॉनकेव मिरर्स हमेशा वर्क करते हैं पैराक्सियल रेज पे, राइट, रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है ना, राइट, बहुत दूर नहीं लेके जा सकते आप, यू कैन नॉट टेक अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई माय सजेशन इज यू टेक स्केलिंग ऑफ 1:4, यानी कि ये बन जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर्स, 6 बन जाएगा कितना भाई, अगर 4 सेंटीमीटर्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर कितना होगा 1/4 इंटू 6, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर्स, राइट, ये 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, इजी है, करेक्ट है ना। सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कितना होगा, इट्स इट विल बी 1 सेंटीमीटर्स। अब ध्यान से, यहां पर ना गलती होने के बहुत चांस होते हैं, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर हम बना देंगे इमेज, इमेज कितनी होनी है 1.5 सेंटीमीटर्स की, वो भी बन गई है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन चुका है, राइट, हाइट ऑफ इमेज बन चुकी है। अब कुछ नहीं है, वी हैव टू जस्ट टेक दोस बेसिक रेज, है ना। फर्स्ट रे कौन सी थी, फर्स्ट रे थी विच वॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट्स सपोज टू पास थ्रू फोकस, है ना, सच बात है, ये रही भाई, इट इज पासिंग थ्रू फोकस, और यहां पर थोड़ा बहुत जुगाड़ चलता है, हल्का बहुत चल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रही हमारी रे। अब दूसरी रे क्या है, सेकेंड रे इज सपोज टू बी, जो कि फोकस से पास करेगी और पैरेलल हो जाएगी, इसके लिए ना थोड़ा ध्यान देना, आई विल टेल यू व्हाई। द रे विच इज गोइंग टू बिकम पैरेलल, पहले तो ना एक पॉइंट ले लो, बिकॉज इसमें गलतियां हो जाती हैं, यू नो व्हाट हैपेंस, हम एक पॉइंट चूज करते हैं और यहीं पर गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, हम एक पॉइंट चूज करते हैं जिसपे कि टच करना है, ये पॉइंट वो है जहां पर ये लाइन भी टच करनी है और ये लाइन भी टच करनी है, राइट, ठीक है, लेकिन कभी कभी यहां गलती होती है। सो लेट्स सी, अगर मैं इस पॉइंट से लेके जाऊं एक लाइन, यस वेरी गुड, ये तो लाइन टच कर गई और यहां से तो मैंने बनाई ही थी, राइट, परफेक्ट, परफेक्ट एकदम। अगर ये लाइन मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं थोड़ा बहुत गलती हुआ है, एंड दैट माय फ्रेंड, ये हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, राइट, विच इज माइनस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये है, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज कितना था, माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स ना, राइट, माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर्स, विच इज इन प्लस, u हमको पता ही है, u was -25 and v was -37.5, ठीक। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, वेरी गुड। नाउ ये हमने 2 डायग्राम देख लिए हैं, आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, वी हैव सीन दीज 2 डायग्राम्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, एंड फॉर दैट आई हैव टू स्विच ऑन दिस साइड। चलो देखो, यस
नेक्स्ट इज लेंसेज। अब अगर लेंस की हम बात करें, राइट, अगर हम लेंसेज की बात करें, we have two lenses, convex और concave, कुछ नहीं है। Again, all the cases you all should remember same as concave mirrors. Concave lens है almost similar as convex mirrors, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 4 characteristics of the image formed by a convex lens of focal length इतना सेंटीमीटर्स when object is placed in front of it at a distance of इतना। भाई एक चीज ध्यान से सुनो, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर्स, राइट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर्स, मींस ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। केसेस याद होंगे तभी तो बताओगे सर, ये तो स्पेशल केस है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, इजी। नेक्स्ट, study the following ray diagrams and list 2 mistakes committed by the student while tracing it. Rectify these mistakes by drawing the correct ray diagram to show the real position and size of the image corresponding to the position of the object AB. इसको रेक्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तुमको, लेकिन आगे एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखो, 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितना है? 20। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज गिवन टू यू दिस मच, दिस इज यू, यू इज -30 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मिरर वाला क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व एंड देन फॉर्म द रे डायग्राम, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। 2020 5 मार्क क्वेश्चन अगेन। Draw a ray diagram in each of the following cases to form the formation between optical center principal focus anywhere in front of concave lens at 2f. State the signs and values of magnification. देखो, question number 8 and question number 6 both are almost similar. Question number 7 is similar to the question which we did for the mirrors, है ना। इसके अंदर solve करना है, exact values निकालनी है, फिर उनके हिसाब से डायग्राम बनाना है। लेकिन question number 6 और question number 1 जैसे हैं, that is why I am going to solve question number 6. कैसे और क्यों? भाई आपको इसको रेक्टिफाई करना है ना। चलो आगे चलते हैं जरा। यस, फॉर दैट आई विल रिमूव दिस वन। इस पे आते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन विल हैव टू फॉर्म अ लाइन, राइट, है ना। हमको एक लाइन बनानी है। बीच में क्या आना है? इन द सेंटर वी हैव टू फॉर्म द लेंस, ठीक। सोचो कितना लिया जाए। सर अगर हम 6 ही ले लें, सर आपको 6 बहुत पसंद है ना। हाँ, 6 पसंद तो है मेरे को। चलो देखो, मैंने अगर यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल ना, बिफोर यू मार्क 6 आपको ना इसमें एक काम करना पड़ेगा। मैंने अगर 6 सेंटीमीटर्स का लिया है तो ये मान के चलो लगभग 0.5 सेंटीमीटर्स इस तरफ, ठीक है। सेंटर में रखो 6। सुनो बच्चों ध्यान से, यू विल कीप 6 इन द सेंटर, 0.5 सेंटीमीटर इस तरफ और 6 पे, एंड 1 2 3 4 5 6 है ना, और 0.5 सेंटीमीटर कम इस तरफ। इन दो जगह पे 2 पॉइंट लगा दो, राइट। वाई आई टेल यू, मैं बताऊंगा तुमको अभी, ध्यान से सुनो। इस वाले पॉइंट से यू विल मेक दिस, ठीक है। इस वाले पॉइंट से यू विल मेक दिस। एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस बन चुका है ना। सच बात है ना। दिस इज अ परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया। और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक चीज और जरूरी होती है, दैट इज द सेंट्रल लाइन, है ना। ये वो लाइन है जहां से हम लोग रिफ्रैक्शन शो करते हैं हमेशा। बहुत अच्छे, ठीक, परफेक्ट है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया 2f, ये हो गया 2f, एज सिंपल एज दैट। अब 2f हो गया, है ना। सच बात है, वेरी गुड। अब 3, यस, एक सेकेंड रुको जरा। हाँ, तो हमने लेंस बना दिया है, राइट, है ना। 2f मैंने क्यों मिटाया? रुको, आई विल टेल यू। सेंटर में हमने रखा 6, ठीक है। और ये जो 0 है ना, और ये जो 12 है, ये बनेगा आपका 2f, ठीक है। ये बनेगा आपका 2f और ये बनेगा आपका 2f। वो 2f क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो लेंथ थी पिछली वाली,
दिस लेंथ वॉज 5.5 सेंटीमीटर्स, है ना. हमने अच्छा सा कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए ये जुगाड़ लगाया था. वी डिड दिस ट्रिक टू फॉर्म दिस कॉन्वेक्स लेंस, बट असल में in reality from optical center till 2f the distance should be 6 centimeters as you have taken, correct है ना. fine, all right. वैसे तो whatever you have chosen it doesn't matter. if you have taken 5.5 आपको उसका half करना है, 2.75 you'll have to make the f, but for me 3 is better, so that's why I have taken 6, right. ठीक है, बहुत अच्छे. now 1 2 3 this is my f, 1 2 3 this is my f, है ना. and make sure that your line is complete. आपकी line perfectly complete है, that's fine. Wait, this is f and this is f. now according to the question बोल रहा था object was kept between f1 and 2f1. ये 2f1 था, ये f1 था, ये f2 था, ये 2f2 था, right. object was kept between f1 and 2f1. कहीं भी ले लो, कोई जरूरत थोड़ी है. f1 और 2f1 के बीच में कहीं पर भी you can take the object. now follow the simple methods because हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर है. f1 2f1, भाई 2f1 is double of f1, है ना. 2f2 is double of f2, वो तो हमने बनाया हुआ है, right. so अब हमको कुछ नहीं करना, we just have to form the basic rays. भाई पहला रे कौन सा होता है? the ray which is parallel to the principal axis, right. after refraction it is going to pass through what? sir f2, है ना. सच बात है, f2 से पास करेगी, कर दी. नेक्स्ट क्या होना है? द रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ एक रे जरा बढ़िया सी. इसको और लंबा कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी. क्यों? तुमको पता चल जाएगा अभी. और लंबा कर देते हैं इसको, है ना. यस, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इफ यू टेक अनदर रे, ध्यान से देखो, यहां तक आ गई. थोड़ा सा और. यस, राइट. सच बात है भाई. थ्योरी टेल्स यू कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1. इमेज कहां बनना चाहिए? बियॉन्ड 2f2. बन तो रहा है, राइट. दैट इज वेयर द इमेज इज बियॉन्ड 2f2. इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, इट इज मैग्निफाइड, एंड दैट माय फ्रेंड इज द करेक्ट रे डायग्राम. बन गया, है ना. इजी है एकदम. ये अलग से क्यों था? यहां पर कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना इमेज डिस्टेंस है, डजंट मैटर. और कितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, कितना इमेज का हाइट है, डजंट मैटर. हमने कुछ भी ले लिया, बस इंपॉर्टेंट थिंग वाज ऑब्जेक्ट f1 2f1 के बीच में होना चाहिए. आप यहां ले लो, डजंट मैटर. ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट का हाइट लो, डजंट मैटर. फाइनली जो इमेज बनेगी, इट शुड बी रियल, इट शुड बी इन्वर्टेड, इट शुड बी मैग्निफाइड, बस. और यही तो करेक्शन करना था, राइट. दैट वाज द करेक्शन वी हैव टू डू. सो विद दिस आई वुड सजेस्ट कि we all should understand कि what kind of a diagram is required for which kind of a question. The diagram which we just saw, इसके लिए कुछ नहीं करना, just go with the basics. The diagram we saw for the mirror, है ना, where we calculated things and then we draw the diagram. For that we have to take care of scaling, है ना. इस तरह से दो तरीके हैं आपके पास रे डायग्राम बनाने के. But after all these diagram making, एक चीज है, keep the logic with you and keep checking कहीं गलती तो नहीं हो रही है, because गलतियां हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन डायग्राम नीट होगा, फुल मार्क्स पक्के हैं. और बोर्ड में क्या अच्छा होता है? फुल मार्क्स ही होती है ना. डायग्राम अच्छे बनाओ. माय राइटिंग इज बैड बट माय डायग्राम वर ओके ओनली, है ना. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों. वी हैव गॉट यू कवर्ड. अंडरस्टैंड दिस, राइट. ये सब आपके लिए जरूरी है. छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नंबर्स इससे बढ़ सकते हैं. सो प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. वी हैव गॉट यू कवर्ड. लाइक दिस सेशन इफ यू थिंक दिस वाज हेल्पफुल. शेयर करो दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, अब तो कर लो कम से कम, है ना. लास्ट मोमेंट पे रेक्टिफाई योर मिस्टेक, राइट. सब्सक्राइब राइट नाउ. स्टिल देन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स. ठीक है, आराम से पढ़ो, डोंट वरी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस.